Hello and welcome to our discussion on inventory models. Now today we'll talk about what are the various inventory models. Broadly, we can classify them into purchase models and manufacturing models. Now, up till last time we talked about inventory as inventory, whether you were a trader or a manufacturer. What is the difference if you are a trader or a manufacturer? If you are a trader, you give orders to your outer world. Your suppliers are external to your business. While if you are a manufacturer, you give order to your departments. So this is the main difference between manufacturing model and purchase model. In purchase model, we give order to our suppliers, while in manufacturing model, we give order to our own departments. Suppliers are external to my organization. They can have their own conditions, but my departments are bound to work according to my wish, according to my desire, according to my plans, according to my agenda. What are my targets? What is my budget? What is my demand forecast? From this very difference comes yet another difference, that is how your inventory will rise. In purchase model, you are not having an inventory. आपके पास अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया. अभी मेरा गोडाउन एकदम खाली पड़ा हुआ है. मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि 10,000 यूनिट्स किसी चीज़ की भेजी जाए मुझे. 3 दिन उसको आने में लगेंगे. तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है. सेकंड डे मेरे पास कुछ नहीं है. थर्ड डे मेरे पास कुछ नहीं है. लेकिन थर्ड डे के एंड पे अचानक से क्या होगा, मेरे गोडाउन के अंदर 10,000 यूनिट्स आ गई. So from 0, my inventory level jumps to 10,000 in a moment. While in manufacturing model क्या होगा, मैं अगर अपने डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि 10,000 यूनिट्स बनाई जाएं, तो वो 10,000 यूनिट्स ऐसा नहीं है कि अचानक से पलक झपकते नेक्स्ट मोमेंट में आ जाएंगी. वो 10,000 यूनिट्स कैसे आएंगी, जो भी हमारी साइकिल है उस हिसाब से. अगर दिन की 1000 यूनिट्स बनती हैं तो फिर दिन भर में 1000 यूनिट्स बनेगी. लंच तक 500 यूनिट्स बनेंगी. तो इन्वेंट्री क्या होगा, जो गोडाउन के अंदर सामान जा रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा. लंच तक 500 हुआ, शाम तक 1000 हुआ, कल के लंच तक 1500 हुआ, कल शाम तक 2000 हुआ. तो धीरे धीरे करके इन्वेंट्री बढ़ती है. सो इफ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, व्हाट आर द बेसिक मॉडल्स, इन्वेंट्री मॉडल्स. Inventory models, we talked of them as purchase model, and then there is manufacturing model. Manufacturing model. So broadly there are these two basic models. Then within these models also we can have two variations. What are those variations further? With shortage, without shortage. Similarly, manufacturing models can also be in with shortage, without shortage. So the idea is that we have 4 basic models: purchase model with shortage, purchase model without shortage, manufacturing model with shortage, manufacturing model without shortage. So if we make this classification still better, थोड़ा सा अच्छा अगर इसको बनाए तो वी हैव दीज 4 बेसिक इन्वेंट्री मॉडल्स. तो आज हम जो देखेंगे, इन इन्वेंट्री मॉडल्स के अंदर क्या फॉर्मूले होते हैं, वेरियस पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हमारे से पूछे जा सकते हैं. जब हम एक इन्वेंट्री मॉडल बनाते हैं तो मेरे को पता होना चाहिए मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी जंप हो सकती है, मिनिमम इन्वेंट्री कितनी हो सकती है, नेगेटिव अगर इन्वेंट्री जा रही है तो कितनी हो सकती है. सो दैट विल बी द डिस्कशन फॉर द डे. सबसे पहले तो हम ये देखें कि व्हाट इज परचेज मॉडल, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग मॉडल. परचेज मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को अगर हम बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करें, let this be purchase model and let this be manufacturing model. So if we talk of what is purchase model, what is manufacturing model, let us take an example, and that example is that
I order 1000 units and daily consumption is 200 units. Yes, when we are working on this purchase model, we are working with an assumption. What is that assumption? Demand can be forecast with certainty. And then second assumption would be instantaneous replenishment. So these are the two basic assumptions that on which our models will be based. All four models: purchase model with shortage, without shortage; manufacturing model with shortage, manufacturing model without shortage. These are the two basic assumptions on which our models will be based. First one is demand can be forecast with certainty. जो आगे आने वाली डिमांड है उसको हम विद सर्टेनिटी असर्टेन कर सकते हैं कि कितना कितना हमारे को चाहिएगा. ऐसा नहीं है कि वो हमारे को कोई आइडिया नहीं है. तो फर्स्ट अजम्पशन इज दिस. सेकंड अजम्पशन इज इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट. इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट मतलब जब आपने ऑर्डर दिया इमीडिएटली उसी मोमेंट पे आपकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी. तो ये इसमें हमारी एक अजम्पशन रहेगी. तो हमारा ऑर्डर कितना है 1000 यूनिट्स का, डेली डिमांड कितनी है 200 यूनिट्स की. तो फर्स्ट डे जब हम ओपन अप करेंगे सेटअप को, तो फर्स्ट डे का हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होने वाला है 1000 का होगा. सेकेंड डे पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 200 का डेली कंजम्पशन है तो ये 800 बन जाएगा. थर्ड डे 600, फोर्थ डे 400, फिफ्थ डे 200 एंड सिक्स्थ डे का ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा वो कितना रहेगा 0. नाउ इफ आई हैव अ लुक एट दिस, क्या हो रहा है, फर्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक कितना है 800, सेकेंड का ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट डे जब हम शुरू करेंगे 1000, 800, 600, 400. फर्स्ट डे का क्लोजिंग क्या कह सकता हूं मैं, फर्स्ट डे का क्लोजिंग एक तरह से क्या है 800 है, तभी तो सेकंड का ओपनिंग कितना है 800 है. तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ओपनिंग देख रहे हैं कि क्लोजिंग देख रहे हैं. जहां पे भी आप ओपनिंग देख रहे हैं स्टॉक तो फिर ओपनिंग स्टॉक ही होना चाहिए सारा. क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं तो सारा क्लोजिंग स्टॉक. इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. हाँ, अब इस पीरियड से जीरो, फर्स्ट से पहले क्या था, फॉर पीरियड 0 हमारा क्या था स्टॉक, कुछ भी नहीं था. तो नाउ इफ आई ट्राई टू प्लॉट इट ओवर हियर कि ये मेरा टाइम रहेगा और यहां पे मेरा इन्वेंट्री लेवल रहेगा. वी हैव इन्वेंट्री एंड टाइम. ठीक है, तो अब ये हमारा इन्वेंट्री वर्सेस टाइम हो गया. तो एट दिस पॉइंट मोमेंट जीरो से जस्ट पहले मेरे पास क्या था, मोमेंट जीरो से अगर जस्ट पहले मैं आता हूं तो आई वॉज हैविंग नो इन्वेंट्री. मैंने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया एंड एट दिस वेरी मोमेंट जस्ट जीरो से यहां पे, तो अचानक से हमारा क्या हुआ, इन्वेंट्री जीरो चल रही थी, अचानक से इट जंप्स टू 1000. देन 5 डेज का हमारे पास है 1 2 3 4 5. फर्स्ट डे जब आप क्लोज करेंगे, लेट अस से वी हैव 1000, वी हैव 500, then we have these partitions. तो फर्स्ट एट दिस वेरी मोमेंट, एट मोमेंट 0, जस्ट अगर मैं 0 माइनस पे बात करता हूं तो मेरी इन्वेंट्री कितनी है 0, और अगर मैं 0 प्लस पे बात करता हूं तो मेरी इन्वेंट्री कितनी है 1000. ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट, कि जब आपने ऑर्डर दिया इमीडिएटली आपके पास वो सप्लाईज आ जाएंगी. हाँ, बड़ा ही आइडियलिस्टिक है, ऐसा नहीं होता है कि कभी भी ऑर्डर देते इमीडिएटली आ जाए, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडल हम ऐसा मान रहे हैं कि जस्ट प्रायर टू मोमेंट 0, दैट इज 0 माइनस, जस्ट उससे पहले इन्वेंट्री वॉज 0, जस्ट उसके बाद इन्वेंट्री इज 1000.
अब अगर फर्स्ट डे का हमारा ओपनिंग 1000 है तो फर्स्ट डे का क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो फर्स्ट डे हमारा ये रहा और इसका क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 500, 600, 700, 800। सेकेंड डे का हमारा क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 600। सेकेंड डे का ओपनिंग 800 है, क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 600। थर्ड डे का हो जाएगा हमारा 400, फोर्थ डे का हो जाएगा हमारा 200 और फिफ्थ डे का क्लोजिंग, सिक्स्थ डे का ओपनिंग 0 है तो इसका मतलब फिफ्थ डे का क्लोजिंग कितना था? 0। तो इफ वी हैव अ लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफ किस तरह का है? अब अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं कि इन्वेंट्री किस तरह से चल रही थी, तो पहले तो इन्वेंट्री 0 थी, इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट है इसलिए अचानक से बढ़ गई और फिर जो भी मेरी कंजम्पशन रेट है उसके हिसाब से कम हो गई। अब जैसे ही ये 0 हो गई, मैं फिर से एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और मेरी इन्वेंट्री कहाँ पहुंच जाएगी? 1000 पे पहुंच जाएगी और कम होने लग जाएगी। सो दिस इज द बेसिक ग्राफ ऑफ परचेज मॉडल। विद शॉर्टेज विदाउट शॉर्टेज की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ परचेज मॉडल कि इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट नहीं है, अचानक से आ जाएगी। फिर जैसे ही 0 हुई, मैं अचानक से एक नया ऑर्डर प्लेस करता हूं और वापस से मेरे पास 1000 यूनिट। इस तरह से चलेगा। जब हम इधर आते हैं तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या था? ऑर्डर कितना दे रहे हैं हम? 1000 यूनिट्स का दे रहे हैं। अच्छा, फिर डेली डिमांड कितनी है हमारी? डेली डिमांड इज 200 यूनिट्स। अब यहां पे तो आपका क्या था? ये परचेज मॉडल था। परचेज मॉडल के अंदर हमने एक जो अजम्पशन ले रखी थी इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट की, तो उसके कारण हो क्या रहा था कि जैसे ही खत्म होता अचानक से आ जाता। लेकिन नाउ वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को अगर हम देखें तो मैं ही मैन्युफैक्चर करता हूं और फिर मैं अपनी डिमांड को फुलफिल करता हूं। मेरे पास डिमांड आ गई 1000 यूनिट्स की, जिसमें मेरे पास डिमांड आ गई कि डेली 200 यूनिट सप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूं, एक यहां तो मैं ऑर्डर मंगा लिया था 1000 का, डेली 200 बेचता गया, सप्लाई करता गया और मेरा ये इस तरह से इन्वेंट्री बन गया। इन्वेंट्री का अगर मैं कहूं कंजम्पशन का ग्राफ बन गया। यहां पे 1000 का लॉट चलाएंगे हम। यहां 1000 का ऑर्डर हुआ था, यहां पे 1000 का लॉट चलेगा। दिस इज ऑर्डर और वी कैन इवन कॉल इट लॉट साइज। लॉट साइज कितने का है? 1000 का। कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को बोला कि लाओ एक 1000 यूनिट्स बना के लाओ। तो वो 1000 कैसे बनेंगी? जब मैंने उनको कहा है कि बना के लाओ, तो फिर वो कैसे बनाएंगे? कि प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे इन्वेंट्री बढ़ेगी। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर 1000 यूनिट्स डेली बन रही है तो लंच तक 500 होंगी, शाम तक 1000 हो जाएंगी, कल लंच तक 1500 होंगी, शाम तक 2000 हो जाएगी। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक और चीज दी हुई होती है हमारे को, दिस इज डेली प्रोडक्शन। डेली प्रोडक्शन कितना है हमारा? लेट अस से 250 यूनिट्स का। अब बहुत ध्यान से हम देखें कि फर्स्ट डे का क्लोजिंग कितना होगा मेरा। दिस टाइम विल टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स। इस बार हमने क्या बात कर ली थी? ओपनिंग स्टॉक्स ले लिए थे ये। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का फर्क यही पड़ता है कि अगर फर्स्ट का ओपनिंग 1000 है तो क्लोजिंग कितना है? 800। जो फर्स्ट का क्लोजिंग है वो सेकंड का ओपनिंग बन जाएगा। दिस टाइम विल टॉक इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग। अब आप सोचिए कि मैंने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि 1000 यूनिट्स बना के लाओ। इन दिस केस हमने क्या कहा था? अपने सेलर को, अपने सप्लायर को क्या कह दिया था? 1000 यूनिट्स भेजो। तो मेरे पास कुछ नहीं था, अचानक से 1000 आ गई। मैंने हर वीक 200 सप्लाई करनी शुरू कर दी। अब मेरा काम हो गया। दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं अपने ही डिपार्टमेंट को कह रहा हूं 1000 यूनिट्स का एक लॉट चलाओ। हमने प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर देखा था लॉट्स होते हैं कि भाई 5000 यूनिट्स का एक सोप बनेगा, फिर 2000 का एक अलग लॉट निकलेगा, 10,000 की एक अलग बाइक बन रही है, फिर उसके बाद 15,000 बाइक्स का एक अलग लॉट निकलेगा। तो हमारी फैक्ट्री तो वही है, लेकिन उस फैक्ट्री को हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं कि जितनी जितनी डिमांड है। इस बार हमारे पास जो डिमांड आई है उस हिसाब से मैंने कह दिया 2000 का एक लॉट निकाला जाए ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर। तो वो 1000 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। पर डे कितना हो रहा है? 250। तो 4 दिन में हो जाएगा। इन एनी केस फर्स्ट डे का क्लोजिंग कितना होगा? बहुत ध्यान से, यहां पे क्या हुआ था? 1000 बन गया था। 1000 में से आपने 200 की जो डिमांड थी वो सप्लाई कर दी,
1000 में से 200 कम हो गया, 800 का क्लोजिंग हो गया, फिर 600, 400 का, इस तरह से हमारा क्लोजिंग चलता रहा। यहां क्या होगा, हम दिन भर में कितनी यूनिट्स बना लेंगे, 250, उसमें से 200 तो सप्लाई भी कर देंगे, हम भिजवा भी देंगे। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट डे का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 50। 250 बनाई गई, 200 सप्लाई कर दी गई। अब 1000 का मैंने तो ऑर्डर दे रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सप्लाई हुई या नहीं हुई, वो तो अपने लगे हुए हैं, डेली की 250 यूनिट्स बना देंगे, क्योंकि आपने उनको बोला है 1000 यूनिट्स बनाओ। उन्होंने 250 बनाई, गोडाउन में भिजवा दी। गोडाउन से मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने पूछा कि हाँ भाई 200 यूनिट आ गई क्या, उन्होंने वो उठाई और सप्लाई कर दी। तब गोडाउन में कितनी बच गई, 50 यूनिट्स बच गई। सेकेंड डे का क्लोजिंग क्या होगा, एनी आइडियाज? अब एक मिनट, सुबह सेकेंड डे को जब हम शुरू करते हैं, गोडाउन में 50 पड़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक है, गोडाउन में 50 पड़ी हुई है। मैं दिन भर में फिर से क्या करूंगा, 250 प्रोड्यूस कर दूंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो 250 प्रोड्यूस करके गोडाउन में भिजवा देगा। मार्केटिंग वहां से पूछेगा कि हाँ भाई 200 यूनिट्स हैं क्या, गोडाउन वाले कहेंगे है, तो जो आज 250 गई हैं उसमें से 200 फिर से वो ले जाएंगे, 50 और बचा देंगे। तो इसका मतलब 50 कल की बची हुई थी, 50 और बच गई, तो ये कितना हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, 100 का हो गया। देन थर्ड डे करेंगे जब क्लोजिंग हम, तो क्या होगा, फर्स्ट डे 250 बनी, 200 चली गई, 50 बच गई। सेकंड डे 250 बनी, 200 चली गई, 50 बच गई। थर्ड डे फिर से ऐसा ही होगा, 50 और बच जाएंगी, तो यू विल बी डाउन टू 150 यूनिट्स। और फोर्थ डे जब ऐसा ही होगा तब आपके पास इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 200। नाउ फर्स्ट डे आपने 250 यूनिट बनाई, फिर 250 बनाई, फिर 250 बनाई, फिर 250 बनाई, तो मेकिंग दीज 250 यूनिट्स पर डे आपने 1000 का पूरा लॉट कंप्लीट कर दिया। फिफ्थ डे प्रोडक्शन होगा क्या, प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको 1000 यूनिट्स बनाने का बोला था हमारे डिपार्टमेंट को, तो हमने 1000 यूनिट्स बना दी, तो हम तो 4 दिन में अपना काम करके फ्री हो गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिफ्थ डे कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इन्वेंट्री बढ़ गई। अब फिफ्थ डे जब प्रोडक्शन ने कुछ नहीं किया तो नया तो कुछ आया नहीं। शाम को मार्केटिंग वालों ने पूछा हाँ भाई 200 यूनिट्स की हमारी डिमांड है, अवेलेबल है क्या, क्या होगा, गोडाउन कहेगा कि यस हमारे पास 200 अवेलेबल है, और वो क्या करेंगे, भिजवा देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी फिफ्थ डे की, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ डे की क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, 0 यूनिट्स की। फिर से समझे, पहले दिन 250 बनी, 200 सप्लाई हो गई, 50 स्टॉक में चली गई। अगले दिन फिर 250 बनी, 200 सप्लाई हो गई, 50 फिर से स्टॉक में गई, 100 का टोटल हो गया। अगेन यू प्रोड्यूस 250, 200 आर सप्लाइड, स्टॉक राइजेस टू 150, ये गोडाउन में भेजता जा रहा हूं मैं जो एक्सेस बन रहा है। फोर्थ डे अगेन आई प्रोड्यूस 250, 200 आर सप्लाइड, गोडाउन में फिर से 200 चलेगी। फिफ्थ डे आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, बट देयर इज अ डिमांड ऑफ 200, तो फिफ्थ डे व्हाट हैपेंस इज ये 200 सप्लाई कर दिया जाता है। दिस इज द आइडिया। नाउ कैन वी प्लॉट दिस इन्वेंट्री लेवल ओवर हियर, 50, 100, 150, 200, लेट अस से हमने ऐसा स्केल ले लिया है, ये हो जाएगा 250। तो अब हमने 50-50 का स्केल ले लिया है, क्योंकि मैक्सिमम हम कहाँ जा रहे हैं, 200 तक ही जा रहे हैं। तो फर्स्ट डे का हमारा क्लोजिंग कितना है, 50। सेकंड डे का हमारा क्लोजिंग कितना है, 100। थर्ड डे का हमारा क्लोजिंग कितना है, 150। फोर्थ डे का हमारा क्लोजिंग कितना है, 200। और फिफ्थ डे का हमारा क्लोजिंग कितना है, 0। तो हम देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारे पास कर्व था वो कैसा था, एकदम स्ट्रेट राइज था। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट। जब आपने ऑर्डर किया अचानक से आ जाता था माल, लेकिन यहां पे किस तरह का ग्राफ होएगा, सॉ टूथ टाइप का होगा। जब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ हमने यहाँ पे ऑर्डर गया ये ऊपर, फिर ये इन्वेंट्री नीचे आ गई। तो इफ आई सी, मैं यहाँ पे अगर इनको बनाने की कोशिश करूं तो हमारा जो परचेज मॉडल होता है उसके अंदर हमारा ग्राफ किस तरह का रहता है, स्टीप राइज होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी हमारा कंजम्पशन है उसके हिसाब से कम हो जाता है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का हमारा ग्राफ कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का धीरे धीरे राइज होता है। किस रेट से राइज होता है,
जो भी हमारा डिफरेंस है, 250 मैं डेली बना रहा हूँ, 200 सप्लाई कर रहा हूँ, तो डिफरेंस कितना है 50। तो अब देख लीजिए 50 की रेट से राइज हो रहा है, 50 हुआ, फिर 100 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ, तो इट राइजेस एट सम लेवल। और वो क्या लेवल होती है? डिफरेंस बिटवीन माई प्रोडक्शन एंड डिमांड, एंड देन इट कम्स डाउन। फिर जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर से एक ऑर्डर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे राइज होगा और फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो वी कैन सी दैट इसके अंदर अगर हम देखें तो एक राइज होता है और एक फॉल होता है, कंजम्पशन होता है। जबकि यहां पे क्या था? राइज इंस्टेंटेनियस था, ऑल यू कैन सी इज फॉल। राइज तो इंस्टेंटेनियस है। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन परचेज मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, के किस तरह का हमारे को ग्राफ दिखेगा। एंड आई होप अब हमारे को ये भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से। परचेज मॉडल में 1000 का ऑर्डर था, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में 1000 के लॉट साइज का ऑर्डर था। मैंने अपनी टीम को कहा था 1000 बनाओ, बट डिफरेंस यहां मैक्सिमम इन्वेंट्री कहां पहुंच गई? 1000 पे, जबकि यहां मैक्सिमम इन्वेंट्री कहां पे पहुंची है? 200 पे। द रीजन बीइंग ये अचानक से नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती जाती है, उसमें से कम होता जाता है, बनती जाती है, उसमें से कम होता जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज? मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है या परचेज मॉडल है? मेरे को ये फर्क पड़ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री जो मेरे को स्टॉक करनी पड़ेगी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में है तो मेरा छोटे गोडाउन से काम चल जाएगा। सेम डिमांड, 200 की डिमांड है, सेम हम ऑर्डर साइज है, लॉट साइज है, लेकिन स्टिल इन्वेंट्री के अंदर कितना फर्क आ गया? यहां पे 1000 को स्टॉक करना होगा, 1000 को कैरी करना होगा, कैरिंग कॉस्ट उस हिसाब से लगेगी। जबकि यहां पे खाली एटमोस्ट किसी भी मोमेंट पे मैं जाकर के एटमोस्ट कहां पे पहुंच रहा हूं? 200 पे ही पहुंच रहा हूं। दिस इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन परचेज मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। एक और स्ट्राइकिंग डिफरेंस परचेज मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में क्या है कि इसके अंदर एक राइज पीरियड भी होता है। इसके अंदर राइज नहीं है क्योंकि इंस्टेंटेनियस राइज है। फॉल दोनों के अंदर है, जैसे भी है इंस्टेंट, वो जो भी हमारा डिमांड है उस रेट से ये कम होती जाती है, पर डे 200 के हिसाब से कम होती जाएंगी। तो यहां भी ये क्या हो रहा है? 1000 कम्स डाउन टू 800, 800 कम्स डाउन टू 600, 600 कम्स डाउन टू 400। तो कंजम्पशन तो जब फॉल है वो तो हमारा 200 की रेट से है। यहां पे भी यही है, यू वर एट 200 और अचानक से फॉल कितना हो गया? 200 से आप जीरो आ गए। तो व्हेन यू आर कमिंग डाउन, यू आर ऑलवेज कमिंग डाउन एट रेट ऑफ कंजम्पशन। Whenever you are coming down the graph, you always come down at a rate of consumption. लेकिन when you are rising, परचेज मॉडल में राइज कैसे होता है? जीरो, इंस्टेंटेनियस। जबकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में देखें तो राइज कैसे होता है? प्रोडक्शन रेट माइनस कंजम्पशन रेट। प्रोडक्शन रेट माइनस कंजम्पशन रेट, दैट इज 250 माइनस 200। 50-50 से राइज हो रहा था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कि किस रेट से हम कंजम्पशन करते हैं, किस रेट से हमारा ग्राफ नीचे आता है। किस रेट से आता है ग्राफ? हमेशा नीचे डिमांड की रेट से। ग्राफ राइज किस रेट से करता है? परचेज मॉडल के अंदर तो इंस्टेंटेनियस फ्लैट एकदम स्ट्रेट लाइन, जबकि मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में किस रेट से राइज करता है? 250 माइनस 200, दैट इज प्रोडक्शन रेट माइनस कंजम्पशन रेट। तो ये हुए हमारे बेसिक ग्राफ्स ऑफ परचेज मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। अब हम चलते हैं कि क्या डिफरेंस आता है व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज, परचेज मॉडल विद शॉर्टेज, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेज। इनके साथ क्या फर्क आ जाता है? तो अभी के लिए हमारे को ये तो समझ में आया कि परचेज मॉडल का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का ग्राफ कैसा होगा? थोड़ा सा स्लांट में राइज हो रहा होगा, और डिक्लाइन जो है दोनों का 200 की रेट से होगा। सो वी कैन summarize the steps, summarize these important points. Increase in graph, zero time, zero, that is instantaneous. किस केस में? परचेज मॉडल में। और इंक्रीज यहां पे किस रेट से होता है? प्रोडक्शन रेट माइनस
कंजम्पशन रेट किस में? मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में. दिस इज फॉर परचेज मॉडल, दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल. इंक्रीज की बात करें तो, लेकिन अगर डिक्रीज इन ग्राफ या डिक्लाइन इन ग्राफ की बात करते हैं हम, डिक्लाइन इन ग्राफ कैसे होता है? एट रेट ऑफ कंजम्पशन. किसके लिए? फॉर बोथ. So this was it for our discussion on purchase model and manufacturing model. Next time when we meet हम देखेंगे कि purchase model with shortage without shortage में क्या फर्क आता है, manufacturing model with shortage without shortage में क्या फर्क आता है, और इनके फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं. So all that we'll talk in next lecture. For now, this is it for our purchase model and manufacturing model, basic inventory models. And until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.